Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him for His mighty firmament. Praise Him for His mighty act. Praise Him according to His excellent greatness. Psalm 150, 1 and 2. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम लोग आगे की संडे सर्विस के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, सो गॉड फादर, लॉर्ड जीसस, thank you for this time, and thank you, Lord Jesus, that you have given us the opportunity to worship you and to come together to praise you and to praise you, Lord Jesus, in all ways, Lord Father. Lord Jesus, we pray that you guide us, and Lord Jesus, those who sing for you, play for you, everything, Lord Jesus, it's for your glory, Lord Jesus. Bless us, Lord Father, and Lord Jesus, bless those who will watch this, Lord Father. Bless their hearts, their minds, help them to understand, Lord Jesus, from your word. And Lord Jesus, you bring a change in all of our hearts as we worship, as we watch, as we praise you. Lord, help us to know you more and to glorify you, Lord Father. Lord Jesus, we give this Sunday service into your hands, Lord Father. We pray in Jesus' name. Amen. What a wonderful Savior is Jesus. What a wonderful friend is He. For He left all the glory of heaven, came to us to die on Calvary. Once more. What a wonderful Savior is Jesus. What a wonderful friend is He. For He left all the glory of heaven, came to us to die on Calvary. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. He arose from the grave, hallelujah, and He lives nevermore to die. At the Father's right hand in the city, we will hear it up in His sky. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Here comes something to sing.
लड़ेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Shalom शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। Shalom शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। Shalom शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। We sing hallelujah to you, Jesus. अब हम ना डरेंगे, आप साथ हैं यीशु, आप साथ हैं खुदा यीशु। Yes, Lord Jesus. Oh Father, we worship you, Lord, we worship you. Oh Father, we worship you, Jesus. We worship you, Father. We praise you. We lift your name on high, Jesus. We lift your name on high. We lift your name on high. Big God, Jesus. गाते हैं Lord Jesus. Hallelujah. महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर की, क्योंकि आप हमको सामर्थ्य देने वाले खुदा परमेश्वर। हाँ लॉर्ड, अब हम ना डरेंगे, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर आप हैं। आपके नाम से वो सामर्थ्य है जीसस, आपके नाम से वो सामर्थ्य है खुदा कि शैतान भी डर के मारे कांपता है लॉर्ड जीसस। वो खुदा परमेश्वर शैतान भाग जाता है लॉर्ड जीसस। यस फादर, वो आपके नाम में खुदा परमेश्वर सामर्थ्य है। यस फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। बट लॉर्ड समटाइम्स मैं वीक हो जाता हूँ, समटाइम्स
हम कमजोर पड़ जाते हैं बट पिता परमेश्वर जब हम आपके नाम लेते हैं Lord Jesus, जब पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर और सामर्थ्य बन जाते हैं Lord Jesus. You are my strength when I am weak Lord Jesus. जब मैं गिर जाता हूँ आप उठाने वाले परमेश्वर हैं Lord Jesus. मेरे सारे परमेश्वर गलतियों को अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर आप हैं Lord Jesus. अगर हम पाप में पड़े रहते हैं Lord Jesus, फिर भी आपका प्रेम इतना महान है कि आप हमें क्षमा करते हैं. We thank and praise you Lord. We praise you Father. Praise you Jesus. Worship you. Worship you Lord. Worship Jesus' name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Once more. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Jesus. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus. Jesus. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, oh God, worship you, Lord, in the name of God. Bearing my guilt, my sin, my shame, nothing I can bless your name. You are my all in all. Crucify, Lord, redeem the name. Joyfully now my praise I bring. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God,
Your name is worthy, Lord Jesus. हाँ खुदा परमेश्वर, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम आपकी आराधना कर सकें, Lord Jesus. हाँ पिता परमेश्वर, हमने जितने भी अपराध किए पिता, आप हमें क्षमा करें, Lord Jesus. आप हमें क्षमा करें और फिर से वो नया जीवन प्रदान करें, Lord Jesus. Yes, Father, we are sinners, but your blood, जो आपका लहू है खुदा परमेश्वर, हमारे पापों को धोता है, Lord Jesus. We ask that blood, उस लहू को हम मांगते हैं, Lord Jesus, जो हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं उसे धो दे, Lord Jesus. Yes, Father, we thank you that you crucified for us, Lord Jesus. आप पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूसित हुए, Lord Jesus. उस बहुमूल्य रक्त को बहाया, Lord Jesus. आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम वो गलती फिर से ना दोहराने वाले हो सके. आप हमेशा सहायता कीजिए, Lord Jesus, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ही एक परमेश्वर आप हैं जो हमें उस पाप से निकाल सकते हैं, वो दलदल की कीच से निकाल सकते हैं, उस सामर्थ्य को प्रदान कर सकते हैं, Lord Jesus. We thank and praise, worship you, Lord Jesus. हाँ पिता परमेश्वर, जब हम आपके सम्मुख आते हैं, पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, Lord Jesus. आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, Lord Jesus. हम जो कुछ भी सुनते हैं, पिता परमेश्वर, ना केवल हम उसे सुने और हम अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके, पिता परमेश्वर, सहायता मदद कर खुदा. हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, पिता परमेश्वर. आगे की सर्विस को भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. Praise the Lord, everyone. Today I just like to share my thanksgiving to our Savior Jesus Christ. First of all, I want to thank God that He has given me this opportunity that I can worship Him and I can praise Him together and share my thanksgiving and testimony. God has really blessed me with so many blessings. Really, God has blessed me. And one thing I want to share, my little testimony. Last weekend, one night, nearly 3:30, कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुल गई और मैं डर गया था. I don't know what was that. I really doesn't understand it. But I was afraid. And that time, the only thing I did, I prayed and I worshipped Jesus Christ. And उसके बाद मैं उठा, मैं बाहर गया और and again I worshipped Jesus Christ. I sang songs और मैं वापस आया तो मैंने Psalm 121 रीड किया और मैंने प्रार्थना की. और उस समय मैं सच में गॉड की प्रेजेंस को फील कर पा रहा था और उसकी सामर्थ्य को मैं महसूस कर पा रहा था. और सच में परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है. गॉड इज़ रियली वेरी पावरफुल एंड ही इज़ विद अस एवरी मोमेंट. यस, ही इज़ विद अस एवरी मोमेंट. और ये सच है, मतलब परमेश्वर का वचन सच कहता है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा ना तुम्हें त्यागेगा. और मैं डर गया था, बट परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा देता हूँ. और परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने मुझे उस दिन सामर्थ्य दी. और सच में परमेश्वर मतलब परमेश्वर ने मेरे को उस टाइम शांति दी और उसकी प्रेजेंस भी मेरे साथ रही. और परमेश्वर का वचन साफ कहता है भजन संहिता 46 वर्स 10 में कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड.
और काफ़ी वचन थे उस टाइम पे जो मुझे याद आ रहे थे और मुझे सामर्थ दे रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमेशा मेरे साथ रहता है। और एंड ऑल्सो आई लाइक टू थैंक गॉड दैट ही केप्ट मी सेफ, हेल्दी, गुड एंड हैप्पी। ही इज़ विथ मी एवरी टाइम एंड God has given us this opportunity that we can record the Sunday service and we can leave it on YouTube. So may God bless each one who is listening to this. In Jesus' name, Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और जो आज का जो मनन का जो आज बुक है वो है लूका, उसका 13 अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद तक। और आज अगर हम इसको देखें, इस पैसेज को देखें या इस पैराबल को, दृष्टांत को देखें, तो यहाँ पर एक दाख की बारी है और उसमें एक अंजीर का पेड़ भी लगा है और उसका मालिक उसको देखने आता है और उसमें देखता है कि उसमें कोई भी फल नहीं लगा हुआ है। सो वो माली को बुलाता है, माली इसमें अभी तक कोई फल नहीं लगा है और आप इसे काट के फेंक दो। सो माली उससे निवेदन करता है मालिक से कि मालिक 1 साल और रहने दीजिए, 1 साल के बाद मैं इसमें बहुत खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। अगर 1 साल के बाद अगर इसमें फल नहीं आया तो मैं इसको काट कर फेंक दूंगा। सो आज का जो विषय है वो है आखिरी मौका, लास्ट चांस परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम अपने जीवन के लिए इसको देखें तो परमेश्वर का जो उद्देश्य था हमारे जीवन में और हर एक विश्वासी के जीवन में वो ये चाहता है कि हम फल लाएं और बहुतायत के साथ फल लाएं। हमारे अंदर आत्मा के फल लगना चाहिए। सो आज के जो विषय पे हम जाएंगे, लास्ट चांस, आखिरी मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम फल नहीं लाए, अगर हम विश्वासी होके आत्मा के जो फल है हमारे जीवन में नहीं दिखने वाले हो सके, यदि हम लोगों को प्रभु के पास नहीं लेके आ पाए, यदि हम नहीं बचा पाए, सो 1 साल आखिरी मौका है, लास्ट चांस, हम फल कैसे लाए, ये एक विषय है। सो हम मत्ती के पास जाते हैं और मत्ती हमें बताएगा उसके 13 अध्याय उसके 23 पद में कि कैसे हम फल ला सकते हैं। तो मत्ती बताता है कि जो अच्छी भूमि में लाया वो 30 गुना, वो 100 गुना, वो 60 गुना फल लेके आया। सो हम कैसे फल ला सकते हैं? तो आज 4 स्टेप देखेंगे और हम उन फलों को कैसे ला सकते हैं। सो पहला जो है सुनना, लिसन। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। सो अगर हमें अपने जीवन में फलवंत होना है, यदि फल को लेके आना है, तो हमें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि वो हमसे क्या बातचीत कर रहा है, हमें ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है, उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा और तब हम फल लाने में पहला स्टेप बढ़ा सकेंगे। सो पहला है सुनना, लिसन। जैसे यूसुफ ने सुना, उसको अपनी आवाज आ रही थी, मगर दूसरी बार उसने कहा नहीं, फरिश्ते ने आके कहा इसको ले जाने से मत डर मरियम को, और हम देखते हैं उसने परमेश्वर की सुनी और वो उसको लेके गया अपनी पत्नी मरियम को। दूसरा जो स्टेप है, हमें अपने जीवन में फल लाना है, तो हम इसी वर्ष से सीख सकते हैं, ना केवल सुनना है ध्यान से, मगर उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम सुनते हैं, अगर हम समझने में भूल कर जाते हैं, यदि हम गलत कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ लेते हैं, यदि हम अपनी बुद्धि अपनी समझ से उसको समझते हैं, सो हम कभी भी फल नहीं ला सकते। इसलिए लिसन के साथ दूसरा स्टेप हमें बढ़ाना है, वो अंडरस्टैंड। जैसे दाऊद कहता है, कई बार कहते हैं मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं, क्योंकि वो समझ गया था परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर से मैं मांगना है स्वर्गीय बुद्धि, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें बहुत गहराई से जाना है उसमें और उसके साथ बहुत समय व्यतीत करना है, परमेश्वर के वचन के साथ बहुत डीप में जाना है। तब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें बताएगा, जैसे वो भेद की बातें अपने चेलों को प्रकट किया करता था। सो हमें फल लाना है तो दूसरा स्टेप बढ़ाना है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, हमें उसको समझना है। तीसरा जो स्टेप हमें बढ़ाना है वो है संचालित करना, यानी कि जो कुछ हमने
सुना है, समझा है, उसको अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। जैसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। सो बहुत ज्यादा जरूरी है। हनूक को देखें हम एग्जाम्पल में, तो हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी कि जो परमेश्वर का वचन बोलता था उसके अनुसार वो अपने जीवन को ढालता था। अगर हमें प्रियो फल लाना है बहुतायत के साथ, तो हमें अपने जीवन में न केवल सुनना है, न केवल समझना है, न केवल अपने जीवन को संचालित करना है, मगर चौथा जो स्टेप हमें बढ़ाना है, सुनाना है। टेल, क्या सुनाना है? हमें गुड न्यूज सुनाना है परमेश्वर के वचन की। जैसे हम देखें प्रेरित काम में वो सुनाने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे, और परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन क्या करने लगा? बढ़ने लगा, और बहुत सारे विश्वासी उस झुंड में शामिल होने लगे। सुनाना, टेल। और पांचवी और अंतिम बात, अगर हमें अपने जीवन में फल लाना है तो हम इस वर्ष से सीख सकते हैं, संभालना। अगर हम देखें एक बच्चे को जन्म देना बहुत आसान है, मगर उसको बड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर हमें बहुत सारा फल लेके आना है, तो हमारे जिस विश्वासी को हम परमेश्वर के निकट लेके आए, उसे संभालना, उसकी टेक केयर करना, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में मजबूत करना, उसको परमेश्वर के वचन की गुण की बातों को बताना, उसको बचपन में दूध के साथ साथ धीरे 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 करके अन्न खिलाते जाना, और जब वो मजबूत हो जाएगा तो वो भी फल लाने के लिए तैयार हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। आज हमें अंतिम मौका मिला है, आखिरी मौका मिला है, लास्ट चांस मिला है। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, सो हमें फल ही नहीं लाना मगर बहुत सा फल लाना है। इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सके, इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सके, और इसके द्वारा परमेश्वर का राज आ सके। तो आइए प्रिय, अपने आप को बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आपने हमें चुना है ताकि हम फल लाएं, और ना केवल हम वचन को सुनेंगे, ना केवल हम वचन को समझेंगे, ना केवल अपने जीवन को उससे संचालित करेंगे, ना केवल हम दूसरों को गुड न्यूज सुनाएंगे, मगर हम उन विश्वासियों को संभालेंगे, उनकी मदद करेंगे। पिता, हम आज से फल लाएंगे, बहुत सारी आत्माओं को बचा के अपने सम्मुख ला सकेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।